اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، پہلے کچھ ٹیکنیکل وجہ سے مجھے پروگرام جو ہے وہ یکدم بند کرنا پڑا۔ اب میں دوبارہ حاضر ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جیسا کہ عیسائی حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ بائبل جو ہے وہ بدل چکی ہے، تو کل میں نے عرض کیا تھا کل کے پروگرام میں کہ صاف ذکر ہے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر کہ بائبل جو ہے وہ اس میں تعریف کر لی، اور مختلف بتائے تھے اس کے جو ہیں مقامات بائبل کے، اور اس میں مختلف اقسام ہیں تعریف کی کہ کس کس طرح کی تعریفیں ہو چکی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کو چھپاتے ہیں، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ ایسے پڑھتے ہیں عبارت کو کہ پتہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کتاب کا حصہ ہی ہے، حالانکہ وہ در حقیقت کتاب کا حصہ نہیں ہوتا، اور پھر کلمات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل لیتے ہیں۔ اور خود بائبل نے 4 جگہ پہ جو ہے یہ ذکر کیا ہے اس بات کا کہ نہ اس میں کچھ بڑھانا نہ کچھ کم کرنا۔ ایک تو استثناء کا 4واں باب ہے، اور پھر استثناء کا 12واں باب ہے، اور مکاشفہ کی کتاب کے آخر میں بھی یہ ذکر ہے نہ کچھ اس میں بڑھانا نہ کچھ اس میں سے کم کرنا۔ تو یہ منع کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ خطرہ تھا کہ اس کو یا تو بڑھا دیا جائے گا یا کم کر دیا جائے گا۔ اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بائبل میں یا تو کچھ بڑھا دیا گیا ہے یا کچھ کم کر دیا گیا ہے، تو ثابت ہوا کہ بائبل جو ہے وہ تحریف شدہ ہے یا اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ عیسائی حضرات یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہوتا ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، حالانکہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہوں کہ یہ ہوگا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح کا ذکر ہے قرآن کریم میں، تو اس کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وہاں کلمات کا سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو پہلی کتابوں میں خدا کا کلام ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری قرآن کریم کے مطابق سورہ المائدہ جو 5ویں سورت ہے اس کی آیت نمبر 45 یا 44 پڑھ لیں، اس میں ذکر ہے کہ علماء کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی حفاظت کرنے کی، خدا تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کے پلان میں تو تھا کہ ایک آخری شریعت آنے والی ہے، پھر ان کی ضرورت نہیں رہے گی، حفاظت کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں البتہ جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں ان کی اس وقت تک اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو، کیونکہ اگر پوری ہونے سے پہلے ہی ان میں تبدیلی ہو جائے تو پھر اس پیش گوئی کا فائدہ کیا؟ تو اس لیے پیش گوئیوں کی حفاظت کی جاتی ہے لازماً اس وقت تک، لیکن اگر بعد میں بھی رہیں تو رہتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہمارے پروگرام ہوں گے وہ مختلف جو اقسام بتائی ہیں تحریف کی قرآن کریم نے ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور ایگزیکٹ ان تحریفات کے مطابق بائبل سے ثبوت دیا جائے گا کہ اس قسم کی تحریف بھی قرآن میں ہے، بائبل میں ہے، اس قسم کی بھی ہے، اس قسم کی بھی ہے۔ لیکن وہ پروگرام جو ہے وہ پوری طرح دوستوں کی شاید سمجھ میں نہ آئے جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ بائبل کی اصل پوزیشن اس موقع پر کیا ہے، اور بائبل جو ہے وہ اس کا متن کیا ہے، متن یعنی اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کی کتنی اقسام ہیں۔ تو پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اس وقت جو سب سے قدیم
मतन है या टेक्स्ट है वो डेड सी स्क्रॉल वाला टेक्स्ट है, और उसका वो दिखा भी दिया था कि वो बाइबल एक उन्होंने शाया कर दी है जिसमें उसका सारा जो मतन है वो शामिल कर दिएगा, और पढ़ने वाले को पता चलेगा कि वो शायद ही कोई किताब ऐसी हो जो तब्दील ना हो चुकी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाइबल स्क्रॉल जो मिले हैं वो मोस्टली यानी स्वाय एक किताब के जो मुकम्मल मिली है वो है यशाया स्क्रॉल, जिसको ग्रेट स्क्रॉल भी कहा जाता है, वो मुकम्मल है और उसमें भी जगह जगह तब्दीलियाँ हैं, वो दिखा दिया था। ये तो है इब्रानी टेक्स्ट जो सबसे पुराना है, और उसके बाद आता है यूनानी टेक्स्ट। यूनानी टेक्स्ट जो है वो मैंने बताया था, जो सेप्टोगिंट जिसका मैंने होता है 70, वो मैंने बताया और उसकी तफसील बताई थी। ये है सेप्टोगिंट, ये मेरे पास तर्जमा मौजूद है इंटरलीनियर, यानी एक साइड पे ग्रीक है। ये भी असल में तो इब्रानी से तर्जमा किया गया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 270 साल पहले ये शुरू हुआ था और बाद में आहिस्ता आहिस्ता बाकी किताबों का भी होता रहा। और मैंने अर्ज़ किया था कि इसमें ज़्यादातर हवाले जो हैं न्यू टेस्टामेंट में वो इसी टेक्स्ट से हैं, यानी ग्रीक टेक्स्ट से हैं, और उसकी अंदरूनी सबूत हमें ये मिलता है कि वो इसी टेक्स्ट से हैं। मसलन इब्रानियों का ख़त है, इब्रानियों का ख़त, और उसमें एक इबारत मिलती है जो इब्रानी टेक्स्ट जो है, यानी जो जिसको यहूदी और प्रोटेस्टेंट फ़िरका वाले इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये अल्फाज नहीं हैं कहीं भी। वो ये हैं इब्रानियों का ख़त चैप्टर 1 आयत नंबर 6, और जब पलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। क्या है? जब पलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। यहाँ ये हवाला दिया गया है, हैं जी, लेकिन ये हवाला इब्रानी टेक्स्ट में नहीं है। इससे पता चलता है कि बाइबल तब्दील हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल हमारा ये मौजू नहीं है। ये सरे राह जाते बता दिया कि ये भी एक सबूत है। और ये जो इबारत है ये इब्रानी टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन यूनानी टेक्स्ट जिसके ज़्यादातर मैंने अर्ज़ किया है कि हवाले न्यू टेस्टामेंट में मिलते हैं, वहाँ ये आज भी मौजूद है। और ये इबारत हमें मिलती है इसमें जो डेटोरोनमी है, इस्तिस्ना की किताब जो है, उसमें हमें ये इबारत आज भी लिखी हुई मिलती है। और ये डिटोरनोमी की किताब में है। इस वक्त वो हवाला मुझे नहीं मिला, जो ही मिलेगा मैं आपकी खिदमत में भिजवा अर्ज कर दूंगा। लेकिन बहरहाल इब्रानी इबारत में ये नहीं है। इसी तरह एक दो और हवाले हैं जो नहीं मिलते। मसलन अमाल की किताब का जो चैप्टर है 7, अमाल की किताब का चैप्टर 7 है और वर्स नंबर है 15। लिखा है, और यकूब मिस्र में गया, वहाँ वो और हमारे बाप दादा मर गए। और उससे पहले लिखा है कि फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब और सारे कुंबे को जो 75 जानें थीं बुला भेजा। यहाँ क्या लिखा हुआ है अमाल की किताब में
75 जानें थीं, लेकिन जब हमें ये जिक्र पढ़ते हैं इब्रानी टेक्स्ट में, जो कि उर्दू तर्जमा है मेरे पास उसका, और उसकी किताब पैदाइश और 46वां बाब, पैदाइश की किताब, अब बाब नंबर 47, उसमें लिखा हुआ है कि यूसुफ के लिखा हुआ है कि यकूब के सुलब से जो लोग पैदा हुए और उसके साथ मिस्र में आए, वो उसकी बहुओं को छोड़कर शुमार में 66 थे, और यूसुफ के 2 बेटे थे जो मिस्र में पैदा हुए। सो याकूब के घराने के जो लोग मिस्र में आए वो मिलकर सब 70 हुए। न्यू टेस्टामेंट में क्या लिखा हुआ है? 75। तो ये जो 75 है, ये दर हकीकत ये जो किताब है ग्रीक तर्जमा जो है ओल्ड टेस्टामेंट का, ये जिक्र इसमें मिलता है 75 का। पैदाइश की किताब बाब नंबर 46, और इसमें ये जिक्र है जी इसका कि वो 75 लोग थे। ये बाब 46 है जेनेसिस की किताब, इस किताब में, और वहाँ वो मैंने पढ़ दिया है पहले ही कि 75 वो इसी किताब का हवाला है। 75 वाला जो हवाला है वो इस किताब का है। तो और भी कई हैं बातें जो कि जिससे पता चलता है कि ये हवाले यहाँ से हैं। मसलन एक मैं जिक्र कर देता हूँ, बड़ी मारूफ पेशगोई है और इसमें यह तारीफ का भी एक सबूत मिल जाएगा। इस्तिस्ना की किताब है, बाब नंबर 18 है। बड़ी मारूफ पेशगोई जो मुसलमान पेश करते हैं कि ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक पेशखबरी है। बाब 18, इस्तिस्ना की किताब बाब 18 और आयत नंबर 15 लिखा है, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में मेरी मानिद एक नबी बर्पा करेगा। ये इब्रानी से तर्जमा हुआ है जो इस वक्त उर्दू तर्जमा है। इसमें जो है ना तेरे ही दरमियान से, ये लफ्ज़ जायद हैं, ये तहरीफ है, क्योंकि यही पेशगोई हमें मिलती है अमाल की किताब में। वहाँ तेरे ही दरमियान का लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि वो ग्रीक टेक्स्ट से लिया गया है। ये है ग्रीक टेक्स्ट से लिया गया है, इसमें ये अल्फाज नहीं है। और वो मैं अभी पढ़ देता हूँ। चैप्टर 3 है इसका, और लिखा चुनाचे, और आयत नंबर 22 है। चैप्टर 3 अमाल की किताब और आयत नंबर 22। चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावन तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा। यहाँ देखें दरमियान का लफ्ज़ नहीं है। ये इस्लाम दुश्मनी की बिना पर यह साबित करने के लिए कि वो नबी आने वाला बनी इसराइल में से होगा, दरमियान का लफ्ज़ बीच में डाल दिया है कि बनी इसराइल में से ही होगा। हालांकि ग्रीक टेक्स्ट में ये अल्फाज दरमियान वाले नहीं हैं। एक और बात है इसमें ग्रीक टेक्स्ट में 7 कुतुब जायद हैं। जो इब्रानी बाइबल्स हैं उसमें वो किताबें शामिल नहीं हैं। जो कैथोलिक बाइबल्स हैं उसमें जो किताबें शामिल हैं वो ग्रीक टेक्स्ट के मुताबिक शामिल हैं, वो इब्रानी टेक्स्ट के मुताबिक शामिल नहीं है। टेक्स्ट गोन का मिक्स है, यानी कुछ इब्रानी से लिया, उसकी भी वजह इंशाल्लाह बताऊंगा कि क्या वजह है। लेकिन जो उसकी किताबें हैं वो इब्रानी टेक्स्ट के मुताबिक नहीं है। अब खुदा ने तो मना किया था, जैसा कि मैंने बताया, इस्तिस्ना का बाब 4, इस्तिस्ना का बाब 12,
इमसाल की किताब और मुकाशफा जो आखिरी किताब है, उसमें आखिरी किताब जो है उसकी आखिरी बिल्कुल जो आयात हैं उसमें मना किया है कि ना इसमें कुछ बढ़ाना ना कम करना। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी जो कुतुब हैं वो जायद हैं। इसमें जायद है तूबिया की किताब, यहूदियत की किताब, हिकमत की किताब, यशू बिन सिराह की किताब, बारूख की किताब, ये जो हैं, और मकाबीन 1 और मकाबीन 2, ये कुतुब जायद हैं, ग्रीक टेक्स्ट में हैं, इब्रानी टेक्स्ट में नहीं है। मैं इसकी 2 मिसालें, और इसके अलावा भी ईस्टर की किताब जो है उसके इब्रानी टेक्स्ट के मुताबिक 10 बाब और 3 आयात हैं, लेकिन जो ग्रीक टेक्स्ट है, जो ग्रीक तर्जमा है, उसमें उसके आगे हैं जी 13 आयात हैं, यानी 10 बाब की 13 आयात हैं, यानी 10 आयात तो इसमें जायद हुई, और फिर 11वां बाब, 13वां बाब, 14वां, 15वां और 16, इसके 16 बाब हैं, यानी 6 बाब और 10 आयात ज्यादा हैं। और इसमें लिखा हुआ है, ये बाइबल है इनकी कैथोलिक की, इधर से भी मैं दिखा दूं आपको, ये देखें, इसमें 7 कुतुब जायद हैं। ईस्टर की किताब के 6 बाब 10 आयात जायद हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि बाब 10:4 मरदकाई यहाँ मुकद्दस जैरूम, यानी जिसने 5वीं सदी में लातीनी ज़बान में तर्जमा किया था बाइबल का ग्रीक टेक्स्ट से, यहाँ मुकद्दम जैरूम पढ़ने वाले को आगाह करता है कि जो कुछ माँ बाद आता है वो उसमें उसके भी तर्जमे में शामिल। मेरे पास वो तर्जमा इंग्लिश में मौजूद है, वो भी इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ अभी। वो इब्रानी मतन में नहीं मगर यूनानी नुस्खे सबाइना में पाया जाता है। इसको सबाइना कहा जाता है, 70, यानी 70 का तर्जमा किया हुआ। एक्चुअली वो 72 लोग थे, जिसको 72 मुतरजमों ने इब्रानी से तर्जमा किया या रूहुल कुदस के इल्हाम से उसे शामिल किया। वो कहते हैं ये तर्जमा जो है ये इल्हामी तर्जमा है, यानी प्रोटेस्टेंट और यहूदी बाकी ईसा को नहीं मानते, वो कहते हैं ये इल्हामी नहीं है, लेकिन कैथोलिक और इसी तरह ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो हैं वो इसको इल्हामी मानते हैं। लिखा है कि इब्रानी से तर्जमा किया या रूहुल कुदस के इल्हाम से उसे शामिल किया। उनका या तो पहले ये इल्हाम में शामिल था और यहूदियों ने निकाल दिया, या खुद तर्जमा करने वालों ने रूहुल कुदस से इल्हाम पाकर ये इसको जायद किया गया। इसी तरह यर्मिया दानियाल की जो किताब है, ये इब्रानी टेक्स्ट जो है वो 12 चैप्टर पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो ग्रीक टेक्स्ट है, यानी जिसको सेप्टोगिंट कहा जाता है, हफ्तावी तर्जमा कहा जाता है, सबाइना तर्जमा कहा जाता है, उसमें 13, 14 बाब जायद हैं, यानी 2 बाब पूरे जायद हैं। इसके बाद लिखा है कि इब्रानी मतन में, ये मैं उधर से पढ़ रहा हूँ कैथोलिक जो तर्जमा है उसमें से, इब्रानी मतन में दानियाल की किताब यहाँ ख़त्म होती है, यानी बाब 12 पर। ज़ैल के 2 बाब यूनानी तर्जमा से मुतरजम हुए हैं, यानी बाकी जो जायद बाब हैं ये यूनानी ज़बान से का जो तर्जमा है सेप्टोगिंट उसमें से शामिल किए गए हैं, यानी इसमें वो जायद हैं। एक और फ़र्क है, ये तो हो गया किताबों का। कोई एक किताब भी ऐसी नहीं है, एक किताब भी जो यूनानी और इब्रानी मतन जो है उसमें हो और उसमें कोई डिफरेंट ना हो। ये 2 डिफरेंट तो मैंने बता दिए हैं, एक में 10 आयात और
6 बाब ज़्यादा हैं और एक में 2 बाब ज़्यादा हैं। एक और फ़र्क है, जो प्रोटेस्टेंट हैं और यहूदी हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट के इब्रानी जो मौजूदा टेक्स्ट है वो उसका मैं इंशाल्लाह बाद में तारफ़ करवाऊँगा, उसको मानते हैं। उसके अलावा किसी को इल्हामी वो नहीं मानते। लेकिन जो किंग जेम्स वर्जन तर्जमा किया गया उसमें 250 साल तक ये, जिसको आज एपोक्रिफा कहा जाता है, यानी एपोक्रिफा का असल मतलब होता है खुफिया किताबें, ऐसी किताबें जो छुपाई गई हों, वो शामिल रही हैं। आज भी वो तर्जमे मौजूद है इंटरनेट पर, जिसका जी चाहे देख सकता है, उसमें एपोक्रिफा शामिल है। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो इब्रानी टेक्स्ट को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। वो जो बाइबल पढ़ते हैं, उनका जो बाइबल राइज है वो इब्रानी बाइबल नहीं है, बल्कि टेक्स्ट भी उसका जो मतन है उसका वो भी ये सबईना है, सेप्टुअगिंट तर्जमा जो है, इसी को इस्तेमाल करते हैं। आज भी वो यही इस्तेमाल करते हैं। जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है एथोपिया का, उनकी बाइबल में 85 किताबें हैं, जैसे मैंने पहले बताया। उनमें जोबली की किताब भी और हनूक की किताब भी शामिल है, और इसके अलावा और भी किताबें हैं जो फिलहाल जब कैनन पे बात करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी मैं तफसील बताऊंगा। ये तो हो गया। अब रहा यहूदियों का, और जो हैं प्रोटेस्टेंट, उनकी ओल्ड टेस्टामेंट एक ही है, यानी जो इब्रानी तर्जमा है वो इस्तेमाल करते हैं, इब्रानी तर्जमा। वो मैं अभी आपकी खिदमत में आपको दिखाता हूं। जी, ये है मेरे पास, ये जर्मन तर्जमा है, इसके साथ इब्रानी टेक्स्ट दिया हुआ है, और इसमें प्रोनाउंसिएशन भी जो इब्रानी का है वो जर्मन ज़ुबान में दिया हुआ है। ये देख लें इब्रानी टेक्स्ट। इसमें जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है 39 किताबें हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। यहूदी और प्रोटेस्टेंट दोनों एक ही टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है अपना कैथोलिक, इनका जो मतन है वो मिक्स है, यानी कुछ हिस्सा जो है वो सबईना तर्जमा का यानी सेप्टुअगिंट का लिया हुआ है। जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो खालिसतन सेप्टुअगिंटा का मतन इस्तेमाल करते हैं, उनकी बाइबल वो है। और यहूदियों की और प्रोटेस्टेंट की जो बाइबल है वो इब्रानी है। इब्रानी टेक्स्ट जो है उसका कंप्लीट जो है उसका मैन्युस्क्रिप्ट वो पुराने से पुराना जो है जिससे ये तर्जमा किया गया है मौजूदा बाइबलों का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो 10वीं सदी का है, यानी इस्लाम से भी 300 साल बाद का, 300 या 350 साल बाद का तर्जमा है। जो कंप्लीट नहीं है, यानी प्रॉफिट्स जो अंबिया की किताबें हैं वो 8वीं सदी का भी मिलता है, लेकिन कंप्लीट बाइबल जो है वो बिबली का स्टुटगार्टिया वो कहलवाता है, और भी उसका एक नाम है। वो 10वीं सदी का है, 10वीं सदी से पहले का कोई टेक्स्ट नहीं है। इसीलिए उसमें चुन चुन कर ऐसे अबारतें निकाली गई हैं जिनका ताल्लुक खास इस्लाम से था। उसकी मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। ये होली बाइबल है, इसको कहते हैं डूवे राइम। ये कैथोलिक की बाइबल है। इसका फुलगाटा, इसको कदीम नाम इसका जो फुलगाटा है, जो अंग्रेजी इसका नाम रखा गया है डूवे राइम। ये डूवे के मुकाम पर, राइम के मुकाम पर तर्जमा इसका हुआ था। डूवे ओल्ड टेस्टामेंट और राइम न्यू टेस्टामेंट का तर्जमा। और ये जेरूम ने पहली दफ़ा लतीनी ज़बान में इब्रानी टेक्स्ट से तर्जमा किया था। लेकिन इसमें भी देखें जो है वो लिखा है
ان کا جو نمبر ہے زبور کی کتابوں کا وہ ایک فرق ہے، یعنی ایک جو کیتھولک ہیں اس میں اگر کوئی 83 ہے تو پروٹیسٹنٹ کی جو بائبل ہے اس میں وہ 84 اس کا نمبر ہوگا۔ 83 جو ہے فل گاٹا جو ترجمہ ہے اس کے مطابق یہ آیت نکال دی گئی ہے اب، یعنی یہودیوں نے جو ٹیکسٹ تیار کیا ہے عبرانی، اس میں سے یہ واضح طور پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ پیش گوئی ہے۔ اور یاد رہے کہ سورہ آل عمران میں مکہ کا قدیم نام جو ہے وہ بکہ استعمال ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ بکہ۔ اور یہ بکہ نام آج بھی جنہوں نے اس لفظ کا ترجمہ نہیں کیا، جرمن ترجموں میں، انگریزی ترجموں میں موجود ہے، یہ زبور کی کتاب میں، پروٹیسٹنٹ کی کتاب میں تھے 84 اور جو کیتھولک بائبل ہے اس میں 83، اور یہاں اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے بکہ کا۔ بہرحال لکھا ہے ان دا ویلی آف ٹیئر ان دا پلیس وچ ہی ہیڈ سیٹ فار دا لا گیور شیل گیو اے بلیسنگ، یعنی وادی بکہ کو جو ہے ایک صاحب شریعت جو ہے وہ برکت دے گا، اور قرآن کریم میں بکہ کو ساری دنیا کے لیے برکت قرار دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں میں کوئی بھی لا گیور یعنی صاحب شریعت نبی نہیں ہوا، اور یہ کتاب جو ہے وہ منسوب ہے داؤد علیہ السلام کے نام۔ اب بتائیں وہ کون سا لا گیور ہے جس نے بکہ کے مقام کو برکت دی؟ سوائے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے بعد صرف ایک ہی نبی نے دعویٰ کیا ہے صاحب شریعت ہونے کا، اور وہ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال یہ آیت نکال دی گئی ہے، لیکن فل گاٹا میں اور سبعینہ ترجمہ میں آج بھی یہ آیت موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے۔ اب ایک اور ٹیکسٹ ہے جس کا میں مختصر تعارف کروا دوں، اور وہ ہے جو سماریٹن فرقہ ہے۔ وہ لمبا عرصہ پہلے یہودیوں سے الگ ہو گئے تھے، وہ صرف پہلی 5 یا 6 کتابوں کو مانتے ہیں، اور ان میں فرق صرف یہ ہے، باقی ٹیکسٹ کا فرق تو ہے، یعنی متن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں بھی فرق ہے۔ میں ابھی آپ کو کچھ ایک ہلکی سی مثال دوں گا، کیونکہ آج تفصیل کا دن نہیں ہے، آج میں صرف تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ ان کے کتنے مختلف ٹیکسٹ ہیں۔ تو وہ سماریٹن ٹیکسٹ کہلاتا ہے، اس کے جو ٹیکسٹ ہے وہ پرانی عبرانی میں لکھا ہوا ہے۔ جو موجودہ عبرانی کا جو وہ ٹیکسٹ ہے، یعنی جس حروف ہیں وہ ارامائک حروف ہیں، لیکن ان کو عبرانی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اردو جو ہے وہ رومن میں لکھ لیتے ہیں، لیکن ان کی جو اصل عبرانی جو پرانی عبرانی ہے اسی میں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اب میں ایک ہلکی سی جھلک آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں اور اس میں کیا، اور بھی کافی فرق ہیں، لیکن ایک ہلکی سی، یہ آدم کلارک ایک بہت ہی معروف نام ہے، عیسائی اسکالر ہیں، انہوں نے پوری بائبل پر کومنٹری لکھی ہے اور بھی کئی کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنی جو جینیسس پہ کومنٹری لکھی ہے اس میں یہ ایک نقشہ دیا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ سیپٹوگنٹ عبرانی ٹیکسٹ اور سماریٹن ٹیکسٹ میں کیا فرق ہے۔ ایک مثال دی ہے، اور بھی بہت مثالیں ہیں، میں صرف ایک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ہے 5واں اور 11واں باب جو ہے جینیسس کا، پیدائش کی کتاب کا، اس میں بزرگوں کی عمریں دی گئی ہیں کہ جب ان پہ پہلا بیٹا ہوا تو ان کی کیا عمریں تھیں۔ اب اس میں آدم کی عمر لکھی ہے عبرانی ٹیکسٹ کے مطابق 130 سال تھی جب پہلا بیٹا ہوا۔ جو سماریٹن ٹیکسٹ ہے اس میں بھی 130 سال ہے، لیکن جو سبعینہ ترجمہ ہے اس میں 230 سال ہے۔ اسی طرح آگے سیت ہے 105،
इब्रानी टेक्स्ट में, समारिटन में भी वही है। आगे जहां फर्क होगा मैं बता दूंगा, वरना समझें कि समारिटन में भी वही है। लेकिन सेप्टुअगिंटा टेक्स्ट में उम्र जो लिखी हुई है सेत की, वो 205 साल उम्र थी जब पहला बच्चा हुआ। फिर एनोश है, इसमें भी 90, 90 और 190। फिर कायनान है, उसके है 70, 70 और 170, यानी 100 साल का आपको फर्क नजर आ रहा है। फिर मसालालील, उसके 65, 65 और 165। एनोक जो है वो जारेद 162 है इब्रानी में, समारिटन में सिर्फ 62 है, और सेप्टुअगिंटा में 162 है। यहां थोड़ा बदल गया, पहले समारिटन और इब्रानी एक जैसे थे, यहां सेप्टुअगिंटा और इब्रानी मुत्तफिक हैं, समारिटन में उम्र का फर्क है। एनोक 65, 65 और 165। इसी तरह मैथूसेला 187, हिब्रू टेक्स्ट में है उनकी उम्र, पहला बच्चा हुआ तो। समारिटन में है 67, सेप्टुअगिंटा में है 167। ये तीनों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। इसी तरह आगे है लामिक, इब्रानी टेक्स्ट के मुताबिक 182 साल उम्र थी इनकी, पहला बच्चा हुआ तो। समारिटन के मुताबिक 53 और सेप्टुअगिंटा के मुताबिक 188। यहां भी तीनों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। नोहा एट द फ्लड, तीनों मुत्तफिक हैं, 600 साल उसकी उम्र थी जब ये फ्लड आया, और इसका टोटल जो बनता है फ्लड तक हिब्रू के मुताबिक 1656, समारिटन टेक्स्ट के मुताबिक 1307 और सेप्टुअगिंटा के मुताबिक 2242, यानी आदम से लेकर फ्लड तक का जमाना जो है ये तीनों में मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल इतना ही काफी है। आगे भी जो है इसी लिहाज से फर्क है। हाँ, एक और फर्क है, आरफैक्सद जो है उसका जिक्र है जो नस्बनामा लिखा हो उसमें, और उसके बाद एक शख्स का जिक्र है कायनान, CAINAN। अब कायनान का जिक्र लूका में भी मिलता है और सेप्टुअगिंटा में भी मिलता है, यानी जो हफ्तावी तर्जमा है उसमें मिलता है, लेकिन इब्रानी टेक्स्ट में इस शख्स का कोई जिक्र नहीं मिलता। इससे पता चलता है कि बाइबल के अपने बयान करदा असूल के मुताबिक कि ना इसमें कुछ बढ़ाना ना इसमें कुछ कम करना, बाइबल में कमी और ज्यादती हो चुकी है। इंशाल्लाह डिटेल से किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह आइंदा जब प्रोग्राम होंगे तो जब मैं इन बातों का जिक्र करूँगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पता चल जाएगा डिटेल से कि इन किताबों से क्या मुराद है, और क्या डिटेल से इंशाल्लाह आप बताएंगे कि कुरान करीम ने जो तहरीफ का जिक्र किया है, हर तरह की तारीफ वो बाइबल में मिलती है। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपके साथ हो और आपको अपनी हिफाजत में रखे, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।